Hello everyone. So I'm going to start with the unit biotechnology. The reason I've chosen this unit is first, it is very difficult. People find it very conceptual. A lot of new concepts are involved. The second thing is the weightage for the NEET exam as well as for your theory paper. It is more. So एक रीडिंग करेंगे एनसीईआरटी की which will clear your concepts both for the board exams as well as for the objective paper that you will be giving. So we'll have a reading together, we'll make the notes simultaneously and we'll work upon it together. Let's start with it. अब ये जो पहला पेज है ना बेटा, ये सारे छोड़ देते हो. Each one of us have the habit. इसमें से सब कुछ हमें नहीं लेना है. We don't need to know it all. लेकिन इस बार एक क्वेश्चन आया है जो उन्होंने इंट्रोडक्शन में से उठा लिया. So because it is NCERT, they can take questions from any of the lines. So the whole approach to understanding natural phenomena became anthropocentric. What is the meaning of this word? Anthropocentric. The word anthropocentric. Anthropology suna hai? Anthropology is human related. So similarly, anthropocentric also means that it is regarding the mankind. Whatever we are doing is always, is these days around the mankind. It should benefit us. We should have the benefit. So physics and chemistry gave rise to engineering, technologies, industries, which all work together for human comfort and welfare that we know. The major utility of the biological world is as a source of food. Biotechnology. The 20th century offshoot, 20th century यहाँ पे highlight करेंगे. 20th century में offshoot हुआ है क्या? Modern biology. तो अगर मैं मॉडर्न बायोलॉजी का बहुत ज्यादा यूसेज देखूं तो इज इन द 20th century. It changed our daily life as its products brought qualitative improvement in health and food production. यानी ये जो चैप्टर है that is going to revolve around two parameters. One is the health, the other one is the food production. The basic principles underlying biotechnological processes and some applications are highlighted and discussed in this unit. तो दो चीजों पे फोकस रहने वाला है. पहला जो यूनिट है दैट इज ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक, कि कैसे बायोटेक में क्या क्या बेसिक है, उसके फॉलो क्या करोगे, प्रोसीजर क्या होगा, एंड उसको अप्लाई कहाँ करोगे, वो नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे. चलो, थोड़ा सा साइंटिस्ट के बारे में कुछ कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए. आप देखो यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है. He performed studies on a couple of restriction enzymes. एक वर्ड यहाँ पे समझ आए कि restriction enzyme कोई enzyme होता है. Of the E. coli bacterium with specially useful properties. Boyer observed that these enzymes have the capability of cutting DNA strands in a particular fashion, which left what has become known as sticky ends on the strands. These clipped ends made pasting together pieces of DNA a precise exercise. This discovery in turn led to a rich and rewarding conversation in Hawaii and with a Stanford scientist named Stanley Cohen had been studying small ringlets of DNA called as plasmids. So if they give you the term, हो सकता है तुमको plasmid term ही ना दें question में. If they're using the term small ringlet of DNA, you should know they are plasmids and which float about freely in the cytoplasm of certain bacterial cells and replicate independently from the coding strand of DNA. Replicate independently from the coding strand of DNA. यहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन इन्होंने दे दिया है प्लाज्मिड के बारे में, which is your extracellular chromosome. Extracellular chromosome. अब हमारे पास क्या होता है, दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा. एक बैक्टीरियल सेल को भी देखोगे तो उसके पास यहाँ पे न्यूक्लियोइड है. पहली चीज तो न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोइड है. इसी का दूसरा नाम है जीनोफोर. इंसिपिएंट न्यूक्लियस, पुराने टाइप का न्यूक्लियस, कुछ भी कह सकते हो. ये इसका मेन डीएनए है. ये इसका मेन डीएनए है. ठीक है, दिस इज द मेन जीनोम. लेकिन इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म में रिंगलेट्स ऐसे छोटे छोटे डीएनए फ्लोट कर रहे हैं, दीज आर सर्कुलर डीएनए कह लो, रिंगलेट्स कह लो. रिंगलेट नया वर्ड सीखा है हमने.
प्लाज्मिड कह लो, ये सब है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डीएनए। दीज आर द एक्स्ट्रा सेल्यूलर डीएनए। जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सॉरी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मैंने यहाँ पे सेल्यूलर लिख दिया है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। जिनोमिक डीएनए नहीं है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, प्लास्टिड का डीएनए, ये सारे इसमें आ जाए। इसके अलावा हमारा एक और आ जाता है, प्लाज्मिड के अलावा एपिसोम्स। Cohen had developed a method of removing these plasmids from the cell and then reinserting them in the other cells. Combining this process with that of DNA splicing enabled Boyer and Cohen to recombine segments of DNA in desired configurations and insert the DNA in bacterial cells, which could then act as manufacturing plants for specific proteins. यानी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया, उसको इंसर्ट किया बैक्टीरिया के अंदर, वो क्या करने वाला था? वो एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर था कुछ स्पेशल प्रोटीन्स को बनाने के लिए। सो दिस इज द मेजर बेसिस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ से तुम्हें क्या क्या चीजें लेनी है, देखो बेटा, यहाँ पे ना सारी चीजें जो है हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो हम नहीं ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे वो प्लाज्मिड है। तो ये वाला एक पैराग्राफ आई वुड सजेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पेज। बाकी चीजें विल डिस्कस बिट बाय बिट इन द कमिंग सेक्शंस। अब बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। तो बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी के साथ इनकॉर्पोरेट करने का रीजन ही ये है कि हम ह्यूमन नीड्स को फुलफिल कर पाए। अब ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने की जरूरत एक तो मेडिसिनल एडवांसमेंट के लिए है, एंड दूसरा क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे लिए एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड लैंड वाला एरिया है, यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम लैंड एक्सपैंड नहीं कर सकते, तो हम एग्जिस्टिंग क्रॉप्स को ही इम्प्रूव कर पाए, ये हमारी कोशिश है। तो वहां हमें बायोटेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ रही है। उसके लिए क्या चीजें यूज करेंगे? हम यहाँ पे यूज करेंगे लाइव ऑर्गेनिजम्स को या फिर उन्हीं ऑर्गेनिज्म के एंजाइम्स को, और फिर उससे हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे। In this sense, making curd, bread, or wine, which all are all microbe-mediated processes, could also be thought as a form of biotechnology. However, it is used in a restricted sense today to refer to such of those processes which use genetically modified organisms to achieve the same on a larger scale. तो पहले हम माइक्रोब्स का यूज बचपन से, मतलब बचपन से एज इन बहुत ही पुराने समय से कर रहे हैं, एंड जो ट्रेडिशनल हमारे कॉन्सेप्ट्स थे वो बेस्ड ऑन दीज डोमेस्टिक प्रोसेसेस। लेकिन अब क्योंकि वी हैव टू मेक देम ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल, we need to genetically modify the organism so that we can produce it on a larger scale. अब इस एक स्टेप को जो हम कह रहे हैं on a commercial scale, on a large scale, that is under biotechnology. Many other processes and techniques are also included under biotechnology. For example, in vitro fertilization. अब बेटा ये पार्ट है, हम डिस्कस करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी रिप्रोडक्शन में, लेकिन इसका दोबारा जिक्र आया है बायोटेक्नोलॉजी में। तो अगर मिला जुला के क्वेश्चन पूछा तो आंसर आना चाहिए। सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन। इनफैक्ट हम आरएनए वैक्सीन भी बनाई है अभी कोविड के टाइम पे, एमआरएनए की वैक्सीन बनाई है ड्यूरिंग कोविड, तो वैक्सीन भी बना सकते हैं। करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन आर ऑल पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर तुमसे ये स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कहाँ कहाँ बायोटेक यूज हो रहा है, तो ट्रेडिशनल भी तुम्हें पता होने चाहिए एंड मॉडर्न भी पता होने चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हमारा यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देता है is that the biotechnology encompasses both traditional view and modern molecular biotechnology. उसने दोनों को मिला दिया, और उसने जो डेफिनेशन दी ये वो डेफिनेशन है जो आपको बोर्ड्स के लिए भी याद रखनी है एंड वैसे भी जरूरी है। इट हैज अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। लेट्स सी दैट।
The integration of natural science and organisms, cells, parts thereof, and molecular analogues for products and services. तो जब हम नेचुरल साइंस को समझते हैं, ऑर्गेनिजम्स को समझते हैं, उनके सेल्स को इंटीग्रेट करते हैं उस नॉलेज के साथ, उस सेल के पार्ट्स को, उसके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स को कुछ नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाने के लिए, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी. So this definition by European Federation of Biotechnology has to be learned as it is, and we'll discuss about the principles in the next video.